ٹھیک ہے، پلیز شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعزیز خان، آپ پشاور، حال مقیم وائن گارڈن جرمنی۔ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تالیف تریاق القلوب کے صفحہ 350 کے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ یاد رہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی 2 حدیں مقرر کر دی ہیں اور فرما دیا ہے کہ وہ امت ضلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح موعود ہے۔ یعنی ایک طرف وجود باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار روئین اور دوسری طرف وجود بابرکت مسیح موعود کی دیوار دشمن کش ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موعود کے زمانے کے بعد ہوں گے، اور مسیح موعود کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے اور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے۔ غرض قرون ثلاثہ کا ہونا برعایت منہاج نبوت ضروری ہے، پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہے، بعد میں اس گھڑی۔ میں نے کہا یہ سوال کی بجائے آپ تقریر نہ کریں اچھا جی، اور نئے نتائج از خود نہ نکالیں سارے۔ مجھے آپ کے نتائج سے اختلاف ہے۔ آپ نے ایک تحریر پیش کی، درست کی، جی اس سے نتیجے اپنی طرف سے نکالی چلے جا رہے ہیں۔ نہیں حضور، میں تو وہی پڑھ رہا تھا۔ نہیں، آپ اپنا نتیجہ نکال رہے ہیں اب۔ حضور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو زمانے کا تعین فرمایا ہے ٹھیک ہے، وہ، اور اس کے کہ اس زمانے کے بعد لوگ جو ہیں امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوں گے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا منشا تھا ہمیں سمجھانے کا؟ میں اپنی کلم علمی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ سکا، مجھے یہ سمجھ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور بیٹھ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صرف یہ ایک تحریر نہیں ہے، اس موضوع پہ اور بھی تحریریں ہیں۔ تو جب ایک مضمون کا احاطہ کرنا ہو تو اس وقت ایسی مجلسوں میں ایک ہی تحریر پڑھ دینی مناسب نہیں ہوا کرتی، اس سے دوسروں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آخری زمانے کی عمر 1000 سال بتائی ہے۔ آپ جو تحریر پڑھ رہے ہیں اس کا ظاہری مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے، اور پھر امت والی جو بحث ہے، تمام تحریریں دیکھنے کے بعد ایک بات قطعی طور پر نکلتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جو آپ کے صحابہ اور تبع تابعین کا دور ہے، اس کے بعد بھی جو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی ساتھ داخل ہوتا چلا جائے گا، آپ کو وقت کا امام مانے گا، وہ امت محمدیہ میں شامل ہوگا۔ جو نہیں ہوگا وہ اس سے باہر سمجھا جائے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا استدلال ہے۔ لیکن کسی ایک جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے انکار کرنے والے کو غیر مسلم نہیں فرمایا۔ کہیں نکالا ہو تو دکھائیں مجھے۔ اس لیے ان چیزوں کو اکٹھا دیکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو اور اپنے منکرین کو غیر مسلم نہیں کہا۔ اس لیے جو امت کی بات ہے وہ حقیقی معنوں میں ہو رہی ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے اور خدا کی حفاظت میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے امام کو بھی مانتا ہے۔ یہ حقیقی معنی ہیں۔ مگر جہاں تک مسلمان کہلانے کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی تحریر میں بھی یہ بات داخل نہیں کہ جس نے رسول اللہ کو مانا اور میرا انکار کیا وہ غیر مسلم ہے۔ سمجھیں؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا نتیجہ نہ نکالیں۔ آپ یہ تحریر پڑھ کر اس طرح سے پڑھ رہے تھے زور دے کر کہ یہ لگتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خاکسار کا نام محمد داؤد مجوکا ہے اور
اگر آپ اجازت دیں تو 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ کر کے دیکھیں پھر اگلی بات کرتے ہیں. حضور، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے امراء کو یہ حکم دیا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے لیے منگوایا جائے. تو اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت سلیمان نے یہ نہیں فرمایا تھا جو آپ سمجھے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی اگلی آیات صاف بتا رہی ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت اس کے پاس ہی رہا ہے. جو تخت اس کو دکھایا گیا وہ اس جیسا تھا. چنانچہ ملکہ سبا نے اس کو دیکھ کر کہا کأنہ ہو، یہ تو ویسا ہی ہے جیسا وہ تخت جو میرے پاس ہے. تو یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ تخت غائب ہو جائے اور ملکہ کو پتہ ہی نہ چلے؟ اس کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کأنہ ہو، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو وہی تخت ہے جو میرا تخت تھا، وہ اٹھا لائے ہو. پھر حضرت سلیمان نے قرآن کے مطابق فرمایا نکرہ لہا، کہ اس تخت کو عام بنا دو. مراد یہ تھی کہ ملکہ سبا کو یہ تکبر تھا کہ صنعت و حرفت میں اور بادشاہی میں ہم بہت اونچے ہیں اور کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تخت اس کی عظمت کا نشان تھا. نکرو کا مطلب ہے نکرہ بنا دو، جس کا مطلب ہے کہ ایک تخت ویسا بناؤ اور اتنا عام ہو کہ وہ سمجھے، اس کو پتہ چلے یہ تخت بنانا تو کوئی خاص شان کی بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ساری آیات کو اگر اکٹھا پڑھیں تو یہ مطلب نکلتا ہے اس کا. باقی جو ہے وہ مولویوں کی کہانیاں ہیں، ان کو دلچسپی ہے چونکہ کہانیوں میں، اس لیے قرآن سے جہاں کہانی کا مطلب نکل سکتا ہو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال. حضور، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے. درست ہے. اور قرآن کریم میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا جو علم ہے وہ انسان کو خود سکھایا ہے. بالکل ٹھیک. تو حضور، اس سے کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عربی رسم الخط جو ہے وہ بھی الہامی ہے؟ یا ہر رسم الخط الہامی ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا. اس لیے ام الالسنہ تو عربی ہے، لیکن مختلف قوموں میں جب عربی سے آہستہ آہستہ مختلف زبانیں بن گئی تھیں تو ان کو بھی خدا ہی نے لکھنا سکھایا ہے. سمجھیں؟ چنانچہ چینی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو تحریریں ہیں وہ ان کے شوفوشی نے دیکھی تھی کشفی طور پر، اور اس سے پہلے تحریروں کا کوئی علم نہیں تھا. اس طرح باقی دنیا میں بھی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی ہے وہ 2 چیزوں سے ہوئی ہے، ایک بیان سے اور ایک تحریر سے. جانوروں میں بیان نہیں اور جانوروں میں تحریر نہیں ہے. انسان کو تمام تر ترقی بیان اور تحریر سے ملی ہے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام کمال احمد ہے. میرا سوال ہے کہ آج کل کی جو بائبل ہے اس کے اندر کچھ حد تک صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن جو صحیح بائبل ہے پھر وہ کدھر ہے؟ آج کل کی جو بائبل ہے اس کے اندر کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن جو صحیح بائبل ہے وہ پھر کدھر ہے؟ صحیح بائبل وہ صحیح بائبل کوئی رہی نہیں، کیونکہ جو بائبل آپ کے پاس ہے وہ در حقیقت 4 صدی کے بعد، حضرت مسیح کی 4 صدی کے بعد بائبل کے ٹکڑے ملنے شروع ہوئے ہیں، اور جو بائبل ہے وہ دراصل 7ویں صدی کی ہے. اور اس سے پہلے بائبل میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان کے متعلق روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کی ایک بائبل تھی اور عیسائیوں نے بعد میں اپنی ایک بائبل کو تسلیم کیا. ان کے اختلافات ہیں آپس میں. نیو ٹیسٹمنٹ کے متعلق بھی اختلاف ہے. میں پہلے پرانی بائبل کی بات کر رہا تھا. نیو ٹیسٹمنٹ کے متعلق بھی بہت سے اختلافات ہیں کہ ایک 100 سال کے بعد پہلی دفعہ لکھی گئی
या मसीह के ज़माने में लिखी गई थी। ज़माने में लिखी गई थी तो कौन पहला लिखने वाला था, उसमें भी इख्तलाफ है। तो तहरीरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में उलमा के बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं। जो मुस्तनद नुस्खा इनको मिला है, वो जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद नुस्खा कहलाता है, वो सीरिया का नुस्खा है। सीरिया की एक मॉनेस्ट्री से जब उलमा ने उनके नीचे तहखाने में देखा तो उनको कुछ टुकड़े नज़र आए कागज़ों के, जिससे पता चला कि ये बाइबल है जो पुराने ज़माने की तहरीर शुदा है। और वो भी मुझे अब याद नहीं, मगर गालिबन उसकी तहरीर भी 300 साल या उसके बाद की थी, मगर दरियाफ्त वो हमारे ज़माने में हमसे कुछ पहले हुआ है। वो नुस्खा जो है वो पहला नुस्खा है जिसके मुतालिक ईसाई कहते हैं कि ऑथेंटिक है। जो कुछ उसमें है वो 100% दुरुस्त है, बस उससे ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़ सकते, उस नुस्खे से पहली तरफ नहीं जा सकते। समझ गए? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, वालेकुम मेरा नाम उस्मान अकरम है, मैं हिलरसम जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी। और मेरा सवाल है ख्वाब के बारे में कि ख्वाब में इस्लाम में मना है या इजाज़त है कि ख्वाब की ताबीर आप जानना चाहें किसी बड़े से, या और कहीं कभी मना नहीं। क्यों, आपको वहम क्यों हुआ है? नहीं, मुझे किसी ने कहा था और कभी क्या कभी कहा था? कि बताते नहीं है ख्वाब। नहीं, वो गलत फहमी है। असल में ख्वाब ना बताने का जो मजमून है वो कुरान करीम में हज़रत यूसुफ के ख्वाब से ताल्लुक़ रखता है। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत यूसुफ की रोया सुनी जिसमें अल्लाह ताला ने आपको बुलंद दर्जों और मर्तबात की खुशखबरी दी थी, तो हज़रत याकूब समझते थे कि बाकी भाई इनसे हसद करेंगे, इसलिए आपने उनसे फरमाया कि ये रोया लोगों को ना बताना, किसी और को। समझे हैं? उससे बाज़ लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोया बताना दुरुस्त नहीं, मगर ये गलत है। रोया बाज़ हालात में जब खुदा ताला की तरफ से बाज़ ख़ास तरक्कियों की खुशखबरियाँ हों, उस वक्त उनके नज़दीक जो साहिब इल्म हों, बाज़ दफ़ा उस रोया की तशरीह जायज़ नहीं होती। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि बाज़ लोगों को अपने ख़यालात की वजह से, अपने दिल की उमंगों की वजह से अपने मुतल्लिक़ ही बड़ी बड़ी ख्वाबें आने लग जाती हैं, और अगर वो अपने मरातिब की वजह से की तशहीर करें तो हसद की बहस नहीं है, लोग उससे गलत फहमी पकड़ जाते हैं और एक शख्स को अपनी ख्वाबें बता बता के अपने मर्तबे बढ़ाने की आदत पड़ जाती है। ये एक गलत और गंदी आदत है, इसको तर्क करना चाहिए। अक्सर ख्वाबों में पैगंबर भी आ जाते हैं, तो वो भी क्या? बता सकते? पैगंबर ख्वाबों में आ जाते हैं। ख्वाबे में आ सकते हैं, मगर आपको क्या पता कि पैगंबर आया था कि शैतान आया था? ये भी है। ठीक है। समझे हैं? पैगंबर की शक्ल का शैतान नहीं बन सकता। अगर पैगंबर की शक्ल आपने देखी हो तो शैतान उस शक्ल में नहीं आ सकता, लेकिन जिस पैगंबर की आपने शक्ल नहीं देखी वो बनकर शैतान आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं उसमें? समझ गए? ठीक है, ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम यासर महमूद है, मैं उबा हुसैन जमात से हूँ। तो मेरा सवाल है कि जब कोई जर्मन है या कोई ऐसे गैर मुल्की है जो अहमदी नहीं, तो उसको जमात अहमदिया के मुतालिक बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो उसको अगर तबलीग करनी हो तो क्या उसका तरीका हो? जिसको किसी चीज़ का कुछ पता ना हो उसको कुछ बताना चाहिए, इसका और क्या तरीका है? यानी अहमदियत की तरह से। हाँ, जिसको कुछ ना पता हो उसको कुछ ना कुछ बताना चाहिए ना। इतनी सी बात है। मुझे तो तुम्हारे सवाल की समझ ही नहीं आ रही। देखो, तुम्हें किसी शहर का कुछ ना पता हो तो तुम लोगों से पूछोगे ना,
या कोई तुम्हें बताएगा, तो इस तरह जिसको कुछ पता ना हो उसको आहिस्ता आहिस्ता अहमदियत का ऐसा तारुफ कराओ कि थोड़ी थोड़ी बातों में उसको दिलचस्पी होनी शुरू हो जाए। अब तुम्हारी अकल के ऊपर है, अगर तुम अच्छा तारुफ कराओगे तो उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, अगर बेहुदा तारुफ कराओगे तो वो कहेगा छोड़ो छोड़ो जाओ अपना रास्ता लो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तबलीग के लिए हिकमत यानी अक्ल को ज़रूरी करार दिया है। तो ऐसे तरीके से उस पर अहमदियत का असर डालना शुरू करो कि वो बोर होने की बजाय अहमदियत में दिलचस्पी लेने लग जाए। समझ गए हो? शुक्रिया। एक और सवाल था। हाँ हाँ कि ये क्या ये सच है कि बाइबल चेंज की गई है? हाँ तो- सच है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तस्वीर। मेरा सवाल है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो क्या कहते हैं तो बाकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहना होता है? इसलिए कि ये दुआ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में, और इस दुआ का मतलब है अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतें और सलामतियाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल हों। अगर आप ये ना दुआ करें वो तो फिर भी नाज़िल होनी ही होनी है, हैं? लेकिन आपके दिल में जो ये जज्बा है कि मैं दुआ करूं, ये इस वजह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पर बहुत एहसान है, सारी उम्मत पर, क़यामत तक के लिए हर इंसान पर एहसान है। जिस पर कोई एहसान किया जाए वो और कुछ नहीं तो दुआ तो देता है ना। बस दुरूद पढ़ना इस बात की इलामत है कि एक इंसान को इस बात का शऊर है, एहसास है कि मुझ पर एक एहसान करने वाले ने बहुत एहसान किए हैं, इसलिए मैं और कुछ नहीं तो दुआ ही दे दूं। तो दुआ से रसूल सल्लम को वैसे फ़ायदा नहीं पहुंच सकता क्योंकि आपको पहले ही बेशुमार बरकतें मिलती हैं, मगर जो दुआ भेजने वाला है उसको फ़ायदा पहुंचता है क्योंकि वो एक शरीफ, खुदा के नज़दीक एक शरीफ और शुक्रगुजार इंसान समझा जाता है। समझ गए? बात समझो कि नहीं? समझ गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ अब बोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़ूर, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, मजलिस हाइडलबर्ग से। हज़ूर, हमारे माशरे में एक बात की जाती है कि नज़र लग जाना, एक बात है, कहते हैं फ़लाँ को नज़र लग गई, इसकी क्या हकीकत है? अक्सर तो माओं के दिल में होती है नज़र, उनको बाल बच्चे प्यारे लगते हैं, उनको छींक आ जाए तो कहते हैं नज़र लग गई, कोई असहार लग जाए तो कहते हैं नज़र लग गई। तो अक्सर नज़रें तो माओं के वहमों की बातें हैं, लेकिन नज़र लगना किसी खूबसूरत चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि मुख्तलिफ इंसानों की ज़हनी ताकत का नाम है। और फ़िरौन के जादूगरों ने जब अपनी ज़हनी ताकत इस्तेमाल की थी तो हज़रत मूसा की नज़र भी बांध दी थी जो खुदा के नबी थे, और बाकी सब जो तमाशाई थे सबकी नज़र उन्होंने बांध दी। इसको कहते हैं नज़र के ज़रिए नज़र बांधना, या दिमागी ताकत के ज़रिए किसी की नज़र को वो दिखाना जो वो असल के ख़िलाफ़ है। इसीलिए उन्होंने फिर हज़रत मूसा के खुदा पर हज़रत मूसा के रब पर ईमान का इकरार किया, क्योंकि जादूगर जानते थे कि जिसको एक दफ़ा दिमाग की ताकत मगलूब कर दे वो अपने ज़ोर से फिर उस ताकत को तोड़ नहीं सकता। इसलिए हज़रत मूसा जब ये देख कर कि ये सांप बनी हुई हैं रस्सियाँ, डर के पीछे हटे हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि अपना सोटा फेंक, और अचानक सबकी नज़र टूट गई, जिसका मतलब ये था कि फ़िरौन के जादूगरों को जो जादू करते थे उनको सबसे ज़्यादा इस बात का इल्म था
کہ جو نظر ایک دفعہ لگ جایا کرے یعنی دماغی طاقت کا اثر وہ از خود ٹوٹا نہیں کرتی، اس لیے ضرور اس کا خدا ہے جس نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے نظر کی، اس کو میزمرزم بھی کہتے ہیں، ہپنوٹزم بھی کہتے ہیں، مگر وہ نظر جو ہے وہ بعض دفعہ بعض صورتوں میں لگتی ہے اگر کوئی بد نظر والا انسان حاسد مزاج کا ہو اور اس کا دماغ طاقتور ہو اور گندے اخلاق کا ہو تو وہ پھر لوگوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جس کو دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کی کبھی لگ بھی سکتی ہے نظر۔ مگر یہ جو وہم پیدا ہوئے ہیں نا کہ ہر ایک بچے کو نظریں کھائی جا رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے نہیں پتا کس حد تک ہے کہ نہیں، اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ تو ماؤں کے وہم ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو تو نہیں لگی ہوئی نظر کوئی؟ ہاں؟ خیال ہے آپ کو؟ نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ میرا اللہ۔ نام مقصود احمد باجوہ ہے، فرینکفرٹ سٹی سے۔ جی حضور میرا سوال ہے کہ یہاں جرمنی میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، جی تو ان گھروں میں حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، تو قبلے کی طرف نہیں لگانی چاہیے، جی قبلے کی طرف نہیں لگانی چاہیے، جی سمجھ گئے؟ جی، لیکن جو تصویریں لگی ہوتی ہیں بعض دفعہ کپڑے چینج کرتے ہیں ہم، تو تصویر کو وہ دیکھ کے وہم ہے آپ کا بھی نہیں۔ اس میں تصویر کوئی جو ہے، شرک یہ تصویر میں کوئی جان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس قسم کے وہم کریں گے تو شرک شروع ہو جائے گا۔ جی اس سے بہتر ہے کہ تصویر نہ لگائیں، سمجھ گئے؟ لیکن حضور میں نے سنا تھا کہ ایک دفعہ کسی سے سنا تھا کہ خلافت سے پہلے یا آپ نے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ آپ کپڑے بدل رہے تھے اور تصویر پہ نظر پڑی، ایک دم خیال آیا کہ مسیح علیہ السلام کی سامنے تصویر ہے، میں نے کیا کیا؟ تو آپ نے فوری طور پہ کہا کہ استغفار کیا کہ کہیں یہ شرک نہ ہو جائے۔ اس خیال کو میں نے جی جی، اس خیال کو ہاں، یہی تو کیا میں جی بھی یہی کہہ رہا ہوں، جی یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، بس یہ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک صاحب کا نام منور احمد باجوہ۔ جی حضور میرا سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے متعلق ہے، کیونکہ اکثر تاریخ احمدیت میں بھی اور ویسے بھی مفکرین جو ہیں وہ دو تاریخیں بیان کرتے ہیں، ایک 20 اپریل 570 عیسوی اور ایک 24 اپریل 571۔ تو اس میں کون سی صحیح تاریخ ہے؟ جماعت احمدیہ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف ایک چیز کا فرق پڑتا ہے، وہ ہے عمر کا تعین ایک حدیث کے ذریعے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 62.5 سال سورج کے اعتبار سے اور 65 سال چاند کے اعتبار سے ہو تو اس کو بیکورڈ کیلکولیٹ کر لیں، اگر وہ 70 پر جا کر ٹھہرتی ہے تو 70 والی تاریخ درست ہے، اگر 71 پر جا کے ٹھہرتی ہے تو 71 والی درست ہے، اتنی سی بات ہے۔ وہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بالکل درست ہے، درست تو ہونا ہی تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کو بڑی اہمیت دی ہے اور فرمایا ہے کہ لازماً اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح کی عمر 120 برس کی تھی، سمجھے؟ اسی حدیث کو دعوت الامیر میں حضرت مسلم موعود نے بھی بڑی اہمیت دی ہے، تو اس کو پکڑ لیں۔ 120 کی میں 65 نہیں کہنا چاہتا تھا، 60 یا 62.5۔ 120 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 60، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چاند کے اعتبار سے 62.5 برس تھی اور سورج کے اعتبار سے 60 برس۔ سورج کے سال لمبے ہوتے ہیں نا، اس لیے تو اس پہلو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا سال تو بڑا واضح اور سب کو علم میں ہے۔ اس تاریخ سے بیکورڈ کیلکولیٹ کریں تو جو 70 والی تاریخ ہے وہ سورج کے لحاظ سے ہے، تو 60 سال نکال لیں آپ کی عمر میں سے
वो अगर 70 पर ठहरती है, 570 पर, तो वही आपकी विलायत का साल है। अगर 71 पर जाकर बात ठहरती है तो वो आपकी विलायत का साल है। बच्चों को कौन सी तारीख जो है, हैं? बच्चों को अगर आप बताएं। अब हिसाब कर लेना घर जाके, तो बता देना। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल यही बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर, मेरा नाम मुनीर अहमद मजोका है और जमात फिरोज़ कराव से तल्लक है। जी। एक सवाल है कि हज़रत खलीफत मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसीर कबीर में एक जगह लिखा है कि इस्लाम की रूह से एक हिंदू और एक यहूदी लड़की के साथ भी निकाह हो सकता है, और गो ये रिवाज आजकल नहीं है, लेकिन अब भी अगर एक मुसलमान मर्द हिंदू लड़की से या यहूदी लड़की से शादी कर ले तो एक ही वजूद पर एक तरफ मुसलमान उसे पोता कहकर जान देगा तो दूसरी तरफ एक हिंदू उसे नवासा कहकर जान देगा, और आपस के इख्तलाफात बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। लेकिन ये बात तभी कामयाब हो सकती है जब इसे कसरत से राइज किया जाए और फिर बच्चों की तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाए। मुसलमानों में से सिर्फ अकबर ने इस पर अमल किया, लेकिन जब बाकी मुसलमानों ने इस पर अमल न किया तो अकबर का काम भी बेकार होकर रह गया और बजाय फ़ायदा रसा होने के मुज़िर हो गया। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और तुम मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान ना ले आए निकाह न करो, और एक मोमिन लौंडी एक मुशरिक औरत से खा वो तुम्हें कितनी पसंद हो यकीनन बेहतर है। तो मेरा हजूर सवाल ये है कि इस आयत के मजमून और इस तफसीर में के मजमून में किस तरह तदबीक की जा सकती है? हिंदुओं में जब आप इजाज़त की बात करते हैं तो इस बिना पर करते हैं कि हिंदू भी एक इल्हामी किताब के मानने वाले हैं, समझे जी, और इस पहलू से अहले किताब शुमार होंगे। हज़रत मुस्लिम माऊद ने इस वक्त दरअसल मुसलमानों के सियासी पस मंज़र को पेश नज़र रखते हुए उन लोगों की बात की है जिनको दीन में कोई ख़ास अहमियत नहीं, लेकिन अगर वो असर रसूख बढ़ाना चाहते तो हिंदू लड़कियों से उनकी शादियां उनके रसूख को फैलाने का मूजिब बन सकती थी। ये बहस है, और उसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ हज़रत मुस्लिम माऊद ने अहले किताब का उज़र बनाया है कि आखिर हिंदू भी तो अहले किताब हैं, लेकिन अगर अहले किताब इतने मुशरिक हो जाएं कि बुत परस्ती शुरू कर दें तो मेरे नज़दीक वो जायज़ नहीं है शादी। अभी भी मैं इस बात का कायल हूँ। हज़रत मुस्लिम माऊद ने एक अमूमी मशवरा हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिया था, जिस पे अमल ना उन्होंने करना था बल्कि तारीख़ की बातें कर रहे हैं। अगर ये होता तो ये हो जाता। उसे शरई नुक्ता निगाह से एहतियात से देखना होगा। शरीयत कुरान बनाता है और कुरान की रूह से अहले किताब से शादी जायज़ है। जो इस्तेंबात में कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं उनमें एक बिना ये है, वो कहते हैं देखो अहले किताब में ईसाई भी आ जाते हैं और ईसाई जो तसलीस के कायल हैं वो मुशरिक हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ शादी जायज़ है कि नहीं? अगर है तो हिंदू जो मुशरिक बन चुके हैं उनसे भी जायज़ है, समझे? मेरे नज़दीक इस बात में भी एहतियात होनी चाहिए। अहले किताब का जहाँ हवाला दिया गया है वहाँ बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुवाहिद होने की वजह से है, और अगर शिरक आम हो चुका हो और घरों में सलीबें लटकी हों तो ऐसे मुसलमान के बच्चे फिर सही मुसलमान नहीं रह सकते। और आप किसी ईसाई लड़की से जो मुशरिक हो शादी करें तो अमलन आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि सलीबे ना लटकाओ घर में, क्योंकि दीन में जबर नहीं है, समझे? इसलिए अक्ल को भी इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे नज़दीक आज भी वो ईसाई जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, जिनके मुतालिक हम जानते हैं कि वो एक नाम के ईसाई हैं, अमलन उनका ईसाइयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सलीबे नहीं लटकाते, उनसे अगर कोई अहमदी शादी कर ले तो मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। लेकिन जब बाद मुझसे पूछते हैं कि ईसाई लड़की है, मुतस्सब ईसाई है, तो मैं उनको साफ जवाब देता हूँ कि हरगिज़ उससे ना करो, क्योंकि कुरान करीम की का असल मंशा ये नहीं था कि घरों में सलीबें लटकवा लो, समझ गए?
क्या दूसरे सवाल में कर सकते इसलिए वो जो तहरीर है जी उसका मैं यही जवाब दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है ठीक है, दूसरा सवाल भी मैं कर सकता हूँ। हाँ, हज़रत मसीह मौऊद ने इज़ाला वहाँ में फरमाया है कि कोई मर्तबा शर्फ व कमाल का और कोई मकाम इज़्ज़त व कुर्ब का बजुज़ सच्ची और कामिल मुताबिक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हरगिज़ हासिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमें जो कुछ मिलता है ज़िल्ली और तुफैली तौर पर मिलता है। ठीक है। तो इसमें रूहानी कमालात का तो जिक्र है, क्या अगर एक इंसान को एक दुनियावी तौर पर एक मकाम और मर्तबा हासिल होता है तो क्या उसकी वो बहस भी नहीं हो रही। ये कह सकता है उसकी बहस नहीं हो रही जी क्योंकि कुरान करीम ने उसकी बहस उठाई हुई है जी कि जो दुनिया चाहता है उसको हम दुनिया देंगे, जी इसलिए उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की शर्त ही कोई नहीं है। जी रूहानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर मुमकिन नहीं है। जी अब वो हिंदू वाले सवाल में आपको मज़ीद बता दूं जी कि आप पसंद करेंगे कि आपके घर में बुत पड़े हों जगह जगह, नहीं जैसे सलीब लटकी हो, तो उनको अहले किताब का बहाना रखकर जी कि किसी ज़माने में गीता खुदा का कलाम था जी या वेद किसी ज़माने में खुदा का कलाम होंगे, ये बहाना रखकर अपने घरों में आप बुत पाल सकते हैं। नहीं और अगर कहें नहीं जी तो फिर इस्लाम के दूसरे हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, ला इकराह फिद्दीन, जी कि दीन में कोई जबर नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन बातों को ज़्यादा बारीकी से देखना चाहिए जी और अहले किताब हों भी जी मगर अगर मुशरिक हों जी तो उनसे निकाह नहीं करना चाहिए। ठीक जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम। मेरा नाम अयाज अहमद राथर है और मजलिस ग्रोस से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि साइंसदान बाज़ औक़ात खला में कुछ पैगामात भेजते रहते हैं कि ताकि हमें दूसरी मखलूक़ात जो कुछ ठीक है। इल्म और शऊर रखती हैं उनका पता लग सके। ठीक है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या उनको इसमें कोई कामयाबी हो सकती है या ऐसी मखलूक का हो वजूद है? सकती है मगर अभी तक हुई नहीं। जो पैगाम भेजते हैं पता कब से शुरू हुआ हुआ ये काम खास नहीं पता, है? खास नहीं पता वैसे। इस सदी अच्छा, के बहुत से साल गुजरने के बाद, अक्सर हिस्सा गुजरने के बाद, गुज़श्ता 10-15 साल के अरसे के अंदर ये मुख्तलिफ बड़ी बड़ी हुकूमतों ने, मसलन अमेरिका ने फंडिंग की है इन लोगों की, और ये लोग बाज़ ख़ास सिग्नल्स भेज रहे हैं कि अगर कोई और मखलूक हो तो उसको पकड़े, और अगर उसमें अक्ल हुई तो समझ लेगी कि ये सिग्नल किसी बाशऊर कौम ने भेजे हैं तो वो जवाबी कार्रवाई करेगी। इसको 10 या 15 साल हुए होंगे, ठीक है? और कायनात कितनी बड़ी है? 20 अरब साल में रोशनी कायनात के दूसरे किनारे पे पहुंचती है। तो 10-15 साल के अंदर ये सिग्नल कहाँ पहुंचे होंगे? अभी कुछ भी नहीं। इसलिए इन सिग्नल्स का जवाब आने तक तो इंसानी शायद ख़त्म हो चुका होगा, सवाए इसके कि ये सिग्नल किस कोई ऐसी मखलूक सुने जो हमारे बिल्कुल कुर्ब जवार में रहती है। समझे? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जमात नोइजमबर्ग से जी। हुजूर, मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला के हर काम में एक हिकमत होती है, मगर किसी इंसान के बीमार होने में खुदा ताला की क्या हिकमत हो सकती है? किसी इंसान के बीमार होने में, जबकि छोटे छोटे मासूम बच्चों और बड़ों को ऐसी अजियतनाक बीमारियों में देखा जाता है कि वो तड़प तड़प कर जान देते हैं। ठीक है। और हुजूर, बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो कि इंसान की खुद बद परहेजी से लगती हैं, जबकि उनको पता होता है कि इन ग़िज़ाओं या इन अशिया के इस्तेमाल से उनको जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो क्या ऐसी उनको बद परहेजी से जो बीमारी लगे उससे उसकी जो जान जाए, तो क्या अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा? आपका जो बयान है इसके मुतल्लिक मैं बार बार जो हवाले दे रहा हूँ कि एक किताब मेरी आजकल छपने पे तैयार बैठी है, उसके आखिरी नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं। उसमें इस सवाल को खुसूसियत के साथ, बड़ी तफसील के साथ, साइंसी हवालों के साथ उठाया गया है, और इसका जवाब इतना लंबा है कि मैं इस छोटी सी मजलिस में एक ही सवाल के सारे पहलू बयान नहीं कर सकता। उसको अगर आप पढ़ें तो फिर मुझे बताएं कि उसके बाद आपको क्या एतराज़ बाकी रह सकता है। बीमारियां हों, तकलीफ़ें हों, एक इंसान
दूसरे इंसान से कम दर्जे का बना हुआ है, एक ज़्यादा दर्जे का बना हुआ है, शक्ल सूरत भी है। तो जब आप एक बीमारी को ख़ास तौर पर उठाते हैं तो असल मकसद ये है कि एक वजूद तकलीफ़ में है, दूसरे नहीं है। मगर एक शख्स अंधा है, वो तकलीफ़ में है कि नहीं? एक शख्स लूला लंगड़ा है, यही नहीं बल्कि इसको छोड़कर अगर वो सारे ठीक हों तो फिर आपस के मुकाबले फिर भी रहेंगे। एक ज़्यादा खूबसूरत है, एक कम खूबसूरत है, एक मजबूत है, एक कम मजबूत है, एक फुर्तीला है, एक कम फुर्तीला है। तो जो मुकाबले हैं वो तो जारी रहेंगे हमेशा। इस सवाल का आखिरी जवाब सिर्फ ये बनता है कि अल्लाह ताला हर एक को बैन ही एक जैसा बना देता, ताकि किसी के दिल में कोई जलन पैदा ना होती। यही नतीजा निकलता है ना आखिरी, या इसके अलावा भी निकाल सकते हैं कोई। जो एक दफ़ा इस असूल को तस्लीम कर लिया कि बाज़ लोगों को अपनी महरूमी का सदमा नहीं होना चाहिए था, वरना खुदा ताला ने हिकमत का काम नहीं किया, ये एतराज़ बनेगा ना। इस एतराज़ को मिटाना शुरू करें। मिटाते 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 आखिर इस जगह पहुँचेंगे कि अल्लाह ताला को सारी मखलूक यानी इंसानों को कम अज़ कम बैन ही एक दूसरे जैसा बनाना चाहिए था। कोई ज़्यादा अक्ल वाला ना होता, कोई कम अक्ल वाला ना होता, कोई ज़्यादा मजबूत जिस्म का ना होता, कोई कम मजबूत जिस्म का ना होता, कोई ज़्यादा खूबसूरत ना होता, कोई कम खूबसूरत ना होता। तो इंसान क्या होता, बंटे बन जाते, एक जैसे बंटे। तो मकसद क्या था फिर इंसान का? तो इस किस्म के सवाल मैंने उस किताब में उठाए हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करके साबित किया है कि अगर मौत और ज़िंदगी और इनके दरमियान जो फ़र्क हैं, बीमारी और सेहत वगैरह के, ये ना होते तो इंसानी ज़िंदगी तरक्की कर ही नहीं सकती थी, हैवानी ज़िंदगी भी तरक्की नहीं कर सकती थी, ज़िंदगी बनती ही ना, क्योंकि ज़िंदगी इसी मुकाबले से बनी है। मौत और ज़िंदगी के दरमियान खुदा ने मनाजिल कायम की हुई है। तो ये लाजमा है जिसको मिटा ही नहीं सकते। अगर मिटा देंगे तो फिर इंसान का वजूद ख़त्म हो जाएगा, फिर फरिश्ते पहले भी हैं, तो इंसान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? इस किस्म के सवाल उठाकर इसके हर पहलू से तफसीली जवाब दिए हुए हैं मैंने, मगर जैसा कि मैंने गुजारिश की है मुख्तसर आप इसको समझ लें, तफसीली जवाब यहाँ देना मुमकिन नहीं है। ठीक है? हजूर, जब बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनका इलाज बहुत महंगा होता है, क्या महंगा इलाज होता है जिन बीमारियों का, ठीक है, तो अमीर लोग तो वो इलाज करा के नहीं, बच सस्ता जाते भी हैं। होता है। होम्योपैथिक इलाज मुफ्त करते हैं हम, हैं? आपको ये वहम है कि सिर्फ महंगा इलाज है। और यहाँ जर्मनी में इतने केसेस हैं खुदा के फजल से कि जिनके मुतल्लिक मुझे मुलाकात में माएँ दिखाती हैं, ये बच्चा देख लो, डॉक्टर ने कहा था बचना मुमकिन ही नहीं है। अब हम दिखाती हैं तो कहते हैं क्या हुआ, पता नहीं क्या हो गया। हम दवाई बताते हैं, कहते नहीं तुम्हें वहम है। अब बीमारी ठीक होना तो वहम नहीं है ना। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां एलोपैथिक डॉक्टर लाइलाज करार दे चुके थे और अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। तो ये वहम है कि सिर्फ अमीर ही इलाज करवा सकते हैं। मेरे नज़दीक मुझसे अब तक जितने भी खुदा के फजल से कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं वो अक्सर गरीब